Hello everyone, today I'm going to discuss 10 questions on basics of personality. This is the day 14 of quiz analysis. This is my Telegram channel where I post these quizzes, so you can join it by typing PsychQuiz1 on Telegram and give the questions there. Question number 1 is, according to which perspective personality is a set of internal forces that compete and conflict with one another? So the answer is psychoanalytic perspective. अब यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस की बात करी गई है दैट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो ऑफ फ्रॉइड. तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट था दैट इज़ साइकोएनालिटिक. और बाकी जो ट्रेट पर्सपेक्टिव हैं दिस इज़ सजेस्ट दैट पीपल हैव फेयरली स्टेबल क्वालिटीज़. ठीक है, यानी कि ट्रेट है ये सब में एक स्टेबल क्वालिटी होती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहती है. साइकोएनालिटिक में इंटरनल फोर्सेस की बात होती है, लाइक पर्सनालिटी डेवलप होती है थ्रू अनकॉन्शियस माइंड एंड द कन्फ्लिक्ट्स विच अराइजेज बिटवीन इड, ईगो एंड सुपर ईगो. ये सारे कॉन्सेप्ट. साइकोसोशल वॉज अबाउट मोर ऑफ सोशल इशूज़ की पर्सनालिटी रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है. एंड सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट बिहेवियर चेंजेस सिस्टमैटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस रादर देन स्टेइंग कॉन्स्टेंट. तो हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और बंडूरा और स्किनर्स की थ्योरी हैं जो भी, वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है. Then which perspective suggests that every person has the potential to grow and develop into a valuable human being if permitted to do so? So this approach was of humanistic approach, and humanistic में Maslow and Rogers are the two main proponent. तो ये self actualization का concept Maslow का है, इसको self determination perspective, organismic perspective भी बोलते हैं. So the right answer is all of the above. Okay, so all the three terms are same, which suggests that every person has the potential to grow and develop into a valuable human being if permitted to do so. If they allow कि वो अपने full potential को experience कर सकें, then their personality will develop. Question number 3 is, which of the personality approach classify people into categories? तो कौन सी personality approach के according लोगों को classify करा जाता है into categories? The answer is type approach. Type approach is like you are either are or not. ठीक है, या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो या तो आप इंट्रोवर्ट हो. लाइक इसी तरह जो आपके जो MBTI था, ठीक है, जो मायर्स बिगर्स टाइप इंडिकेटर, सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप पर्सनालिटी की. या तो आप ISFJ इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, INTJ इस तरह की, जितने भी आई थिंक 16 अराउंड है. तो वो चीज़ जो हिपोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन था पर्सनालिटी का, वो सारी चीज़ उसी तरह जैसे टाइप A, B, C, D इस तरह की जो होती हैं, तो ये उसी तरह जैसे ज़ोडिएक साइन है तो ज़ोडिएक साइन में भी क्लासीफाई कर देते हैं कि इस राशि के लोग ऐसे होते हैं, इसके ऐसे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें टाइप मॉडल में आती हैं. देन ट्रेट मॉडल टॉक्स अबाउट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. ठीक है, क्वांटिटेटिव होती है यहाँ पे चीज़ें और क्वालिटेटिव नहीं होती हैं. लाइक हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दैट देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूम, एक स्केल है. तो पीपल आर मोर टूवर्ड्स इंट्रोवर्ट, उनके अंदर इंट्रोवर्ट का ट्रेट ज़्यादा कम हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्लासीफाई नहीं करें कि यू ईदर आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो यहाँ पे बीच की चीज़ें भी हो सकती हैं. सो दैट इज़ ट्रेट मॉडल सेज. Then question number 4 is, psychophysical system refers to the organization of psychological and physical trait. Reason is personality is the combination of physical and mental traits. तो ये जो psychophysical ये जो term है, I have taken this from Allport's definition that personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. So ये psychophysical word वहाँ से लिया हुआ है, and it refers to the organization of psychological and physical traits. Psychophysical का मतलब कि personality is made up of both psychological and physical traits. Then personality is a combination of physical and mental traits. Okay, so both the assertion and reason is correct, but reason does not explain assertion. So option number 2 is correct. Question 5 is, identify incorrect statement about temperament. तो temperament होता क्या है actually? You have seen children. See, first of all, temperament is genetic, hereditary, यानी ये इनबॉर्न होता है, innate होता है. ओके, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज, टेम्परामेंट इज ईजी टू मॉडिफाई, मैनिपुलेट और चेंज. ओके, नो, टेम्परामेंट इज नॉट ईजी टू मॉडिफाई, मैनिपुलेट और चेंज. ओके, इट इज़ हार्ड. वाई इट इज़ हार्ड? बिकॉज इट इज़ इनबॉर्न, इट इज़ इनहेरिटेड. और आप कोई भी चीज़ को जो भी इनहेरिटेड है वो जल्दी चेंज नहीं कर सकते, एंड इट इज़ वेरी हार्ड. लाइक यू मे हैव सीन चिल्ड्रेन, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं. ठीक है, वो किसी के पास भी चले जाते हैं, तो दे आर ईजी गोइंग चिल्ड्रेन. और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी मदर को छोड़ के किसी और के पास जाते ही नहीं हैं, और किसी के पास भी जाएंगे तो वो रोने लगेंगे. तो इस तरह का ये सारी चीज़ें होती है टेम्परामेंट. कुछ होते हैं जो हर किसी के साथ खेलते हैं, कुछ होते हैं जो चुप रहते हैं, इवन जो 1 ईयर 2 ईयर्स के बच्चे भी हैं क्वाइट रहते, तो वो उनका टेम्परामेंट है. ठीक है, जो उन्होंने
इननेट है, उनका हेरिडेटरी है, ठीक है। तो टेम्परामेंट रिफर्स टू एन इनहेरिटेड पर्सनैलिटी टू इट प्रेजेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। देन टेम्परामेंट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट ऑलवेज शोज अप फर्स्ट। तो ये टेम्परामेंट है किसी भी पर्सनैलिटी को समझने के लिए शुरू से ही, इवन 6 महीने 8 महीने के भी जो बच्चे हैं, दैट दे शोज टेम्परामेंट। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इसकी पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है। Then temperament is hard to modify, that is why this statement is incorrect. Temperament is the natural part of your personality that comes from your genes. Okay. Question number 6 is character is the part of you that comes from your environment. Correct है. Character isn't as stable as temperament. This is also correct, but reason doesn't explain assertion. So option number 2 is correct. Now what is character? Character is the result of experience and social interaction in your life that once you learn lesson from. तो कैरेक्टर इज़ समथिंग अबाउट मोरालिटी, एथिकल्स। जब हम इन सब की बात करते हैं कि कोई भी पर्सन, जब हम अच्छे और बुरे की बात करते हैं, कोई भी पर्सन अच्छा है या बुरा है, तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स, जहाँ पे हम किसी को भी जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल वैल्यूज़। तो वो होती है कैरेक्टर जो कि हमारे रिजल्ट और एक्सपीरियंस और सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होता है, ठीक है। कोई अगर चोरी कर रहा है तो उसकी क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, किस हालातों में उसने चोरी करी और कैसे उसका एडिक्ट हुआ, कैसे वो एक थीफ बना, तो वो उसका एक पार्ट ऑफ कैरेक्टर है जिसको हम अच्छा डिफाइन नहीं करेंगे, वी विल से ही हैज़ अ बैड कैरेक्टर। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कैरेक्टर इज़ंट एज स्टेबल एज टेम्परामेंट बिकॉज इट इज़ नॉट जेनेटिक। कैरेक्टर जो है वो जेनेटिक नहीं होता है, इट अराइजेज फ्रॉम दी सोशल इंटरेक्शन। ओके, तो इस वजह से इट कैन बी मॉडिफाइबल, आप इसको चेंज कर सकते हो थ्रू सोशल एजुकेशन। क्वेश्चन 7 सेज अरेंज देम फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस ऑफ द टर्म। तो मतलब है कि जो सबसे बड़ा टर्म है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा टर्म। सो पर्सनैलिटी इज द ब्रॉडर टर्म, देन कैरेक्टर एंड देन टेम्परामेंट। So 1, 2 and 3 is the correct sequence. Temperament is the natural part of your personality that comes from your genes, and the part of your personality that always shows up first. तो टेम्परामेंट सबसे पहले अराइज होता है, तो ये छोटा पार्ट है। उसके बाद कैरेक्टर क्या है कि कैरेक्टर बिल्ड्स अपॉन टेम्परामेंट, ठीक है। This is the aspect of personality that includes temperament and the social and educational habits that you have learned. तो कैरेक्टर एक तरह से temperament plus your learned habits, ठीक है, जो भी आपने चीज़ें सीखी उससे बिल्डअप होती हैं कैरेक्टर। ओके, देन पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम एडिंग अप कैरेक्टर। पर्सनैलिटी कैसे बनती है? कैरेक्टर और आपका जो बिहेवियर है उससे। तो कैरेक्टर के अंदर आपका टेम्परामेंट और लर्नड हैबिट दोनों आ जाता है। तो इस तरह से आपका सबसे पहले टेम्परामेंट डेवलप होता है, देन योर कैरेक्टर डेवलप्स एंड देन इट इज़ योर पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन लार्ज से लेके स्मॉल तक बताना है। तो पर्सनालिटी लार्जर है, ब्रॉडर टर्म है, उसके बाद कैरेक्टर और टेम्परामेंट है। ओके, अगर डेवलपमेंट के बेसिस पे अरेंज करना होता तो दिस विल बी द सीक्वेंस, टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड देन पर्सनालिटी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव टू पर्सनैलिटी। तो साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेस अनकॉन्शियस प्रोसेस। ओके, साइकोएनालिटिक आपका सेगमेंट फ्रॉइड का है, ठीक है। emphasizes childhood experience की जो personality है that develops from childhood experiences, intrapsychic conflicts and internal drives influences behavior। तो intrapsychic conflicts यानी कि आपके conflicts between id ego and super ego, और जो भी आपकी internal drives हैं, जो भी unconscious mind से desires हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये सारी ही statements correct हैं for psychoanalytic। So the answer is none of the above is incorrect। Question 9, Freud talked about 3 types of anxiety, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग दम। तो फ्रॉइड ने 3 तरह की एंजाइटी की बात करी थी कि जब इड और सुपर ईगो में क्लैशेज होते हैं तो देयर अराइजेस अ एंजाइटी इन अ पर्सन। तो वो 3 तरह की एंजाइटी हैं। तो इनमें से कौन सी एंजाइटी जो उन्होंने नहीं बात करी थी? सो द आंसर इज इमोशनल एंजाइटी। ही टॉक्ड अबाउट रियलिटी, न्यूरोटिक एंड मोरालिटी एंजाइटी। तो when the ego is not able to balance the id and super ego, the individual will develop internal conflicts such as anxiety। तो id और super ego के बीच में जब clashes होते हैं तो anxiety develop होती है, and this anxiety can be classified into 3 types। तो सबसे पहले है रियलिटी एंजाइटी, यानी कि फियर ऑफ समथिंग रियल इन द वर्ल्ड, जो भी एक्चुअल है, कि फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, फियर ऑफ मिस हैपनिंग, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, आप कहीं जा रहे हो तो आपको कोई परेशान ना कर दे, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड के जो इवेंट्स है उससे जो एंजाइटी आ रही है दैट इज़ रियलिटी एंजाइटी। देन कम्स न्यूरोटिक एंजाइटी, फियर ऑफ पनिशमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इड इम्पल्सिस गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो हियर द एंजाइटी कम्स कि अगर आपका जो इड के ऊपर जो कंट्रोल है, अगर आप उसको वो लूज़ कर देते हैं तो उससे आपको जो पनिशमेंट मिलेगी, तो दैट इज़ न्यूरोटिक एंजाइटी। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है, उसका इड ये कह रहा है कि चोरी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ये फियर भी है कि अगर मैंने चोरी करी और मैं पकड़ा गया तो आई माइट गेट पनिश्ड. तो हियर द चाइल्ड इज हैविंग न्यूरोटिक एंजाइटी. Moral anxiety says fear of violating moral or ethical codes arising from the super ego. तो here कि सुपर ईगो जो भी कह रहा है, आप अगर उसका जो प्रिंसिपल है, जो वैल्यूज़ हैं, वो अगर वॉयलेट कर देते हो तो इस बात का डर कि कहीं मैं अपने सुपर ईगो का जो भी वो बोल रहा है, यानी कि जो भी मेरी मोरालिटी हैं, जो भी मेरे एथिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, मेरे जो एथिक्स हैं, अगर मैं उनको वॉयलेट कर देता हूँ तो यहाँ पे द पर्सन विल फील moral anxiety. Last question is, the latest finding reveals that birth order does not appear to influence personality in adults. Whose theory has been proved wrong with this finding? तो it was Alfred Adler जिन्होंने बर्थ ऑर्डर का जिक्र किया था अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में, कि जो बर्थ ऑर्डर होता है दैट इन्फ्लुएंसेस आवर पर्सनालिटी. उन्होंने हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि जो एल्डर बॉर्न होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मिडिल बॉर्न की क्या होती हैं, ओनली चाइल्ड की क्या होती है. तो अगर आप लेटेस्ट स्टडीज़ पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि बर्थ ऑर्डर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन द पर्सनालिटी. सो दिस एडलर की जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है, दैट प्रूव्स टू बी रॉन्ग. और वो भी उनका सिर्फ बर्थ ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट. ओके, नॉट होल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. ओके, तो उनका जो बर्थ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय दिस लेटेस्ट फाइंडिंग. Yes, it is believed that each birth order position has its unique. ये उनका मानना था कि हर जो ऑर्डर ऑफ पोजीशन है बर्थ ऑर्डर की वो इफेक्ट करती है पर्सनालिटी को. सो दैट हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग विद दिस फाइंडिंग. So this was it. If you have any doubt, you can ask me. Thanks for watching. Have a good day ahead.